આચરણ કરાવ. આપણે છે ને અહીંયા મારે ગેસ્ટ આવે છે ને એટલે હું નથી બોલતી, એટલે મેં અચ્છા, સાયલન્સ પર રાખ્યું છે. ઓકે, વાંધો નહીં. તો પ્રમોદભાઈ, તમે આજે દેશોજી હતી. નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણસણમ મંગલાળમ ચ સર્વેસીમ પરમં હવૈ મંગલમ. 3 બોલવાના છે. હા. નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણસણમ મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ પરમં હવૈ મંગલમ. નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણસણો મંગલાણમ ચ સર્વેસી પરમં હવૈ મંગલમ. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ બધા સાતમ આસો. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ એવરીવન. હર્ષાબેન કરવાનું છે રીતે. So the last session that we had of Nijananda Nishkarsh, Harshaben from Florida, she will summarize it. And I also got, one short one-line takeaway from Jalpa in English. तो हर्षाबेन आप समरी करावशो लास्ट टाइम ની, so we can all refresh our memory. હર્ષાબેન, છો તમે? Thought I saw her, maybe. Kavani. Did she? નથી હર્ષાબેન. Oh, Pramodbhai, did you have anything? ના હર્ષાબેન આઈ થિંક હતા તો ખરા. લેટ મી જસ્ટ સી. Yeah, I thought I saw her. ના શી ઇઝ બેક. શી ઇઝ બેક. જય જીનેન્દ્ર. હા, જય જીનેન્દ્ર. હા, પ્રણામ. સમય તો ઓછો હતો, પણ મેં મારાથી જે મને સૌથી વધારે ગયા આપણે સત્સંગમાં શાલિભદ્રભાઈએ સમજાવ્યું કે એમણે ઘણા બધા આપણને જુદા જુદા દાખલા આપી અને આપણને કન્ટિન્યુઅસ બે વાત કહી છે કે જ્યારે જીવને પર્યાય ક્ષણ ક્ષણ બદલાતી હોય છે ત્યારે એનો સંસાર વધે છે, કારણ કે પર્યાયમાં આપણે ક્યાં તો રાગ કરીએ ક્યાં તો દ્વેષ કરીએ અને એ શુભાશુભને લીધે સંસાર વધે છે. can somebody else please mute? Sorry. Hello? Sorry, Harsha. Yeah, go ahead. Okay, should I continue? હા, કોઈક અનમ્યુટ થઈ ગયું હતું. હા, ભલે. સારું. અચ્છા, સાથે સાથે એમને એ જ વખતે એ પણ આપણને કહ્યું હતું કે જે સાધક છે એને એનું વર્તન દરેક પર્યાયમાં કોન્સ્ટન્ટ હશે, એટલે એ સાધકનો સંસાર ટૂંકો થાય. ખરેખર આખું એમણે, હું જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ મેં સાંભળ્યું ત્યારે મને એમ થાય કે શાલિભદ્રભાઈએ આપણને આમ ખાસ કરીને કે ખરેખર જો આપણને પોતાનું કલ્યાણ કરવું હોય તો વિવિધતાને બદલે એક પર્યાય જે પણ આપણને ગમે પણ એને ફોકસ કરી એમાં અંદર ઉતરીએ. અને 2-3 વાર પણ એમણે આપણને એ પણ યાદ કરાયું છે કે આપણે વિચાર કેમ નથી કરતા. કર વિચાર તો પામ, આપણે બોલીએ ખરા પણ સાંભળીએ ખરા, પણ ખરેખર આપણે એક એક સત્સંગને પાછળથી 10 વાર સાંભળીને વિચાર નથી કરતા એના ઉપર. એટલે જે આખો આપણું
માનસ આપણું જેમ સંસારમાં છે કે હવે ચાલો ને આ ડ્રેસ બહુ પહેર્યો, હવે થાકી ગઈ, નવો લઈ આવો. એમ આપણને આ વસ્તુ જેમ એમણે જ કીધેલું કે આપણે ધર્મમાં પણ એ જ લઈ આવે છે કે આ જ આપણી ભૂલ થાય છે. અને કેટલા બધા દાખલા આપ્યા આપણને, મૃગાવતીજીનો પણ દાખલો આપ્યો, આપણને ભગવાન સ્વામીજીનો પણ દાખલો આપ્યો કે કોઈ એમને પરિસર કરે કે કોઈ એમને અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરે, એમને કાંઈ ફરક પડતો નહોતો, એ પોતાનામાં હતા. એટલે આપણને ગૌતમ સ્વામીજીનો દાખલો આપ્યો, પછી એમણે મહારાજ સાહેબનો પણ દાખલો આપ્યો, કલાપૂર્ણ દાદાજીનો દાખલો આપ્યો. ત્યારે કે આપણને વિચાર થાય કે આ બધાને મહાત્માઓ આપણે કેમ કહીએ છીએ? ને આપણે એક ક્ષણ બદલાતી પર્યાય જ આપણને એ અનુકૂળ આવે છે. સૌથી મોટો એમનો આ સંદેશ હતો એ ગયા વખતના એમાં કે જીવે ખરેખર પોતે શું કરી રહ્યો છે, શા માટે કરી રહ્યો છે. એમણે આપણને જ્યારે મોહનીય કર્મ માટે, ત્યારે એણે આપણને શીખવાડ્યું જ છે કે આપણે એક આશયથી જીવનનો કંઈ પણ ક્રિયા કરીએ, ઇવન જીવન જીવવાનો પણ એક આશય હોય કે હું મનુષ્ય છું, મારે મનુષ્ય તરીકે કેવી રીતે જીવવું છે એ પણ એક આશય હોય. અને એમાં જે આપણને વ્યવસ્થિત લાગ્યું હોય, અને જો આપણને એમ લાગે કે અમારી મતિ કલ્પના હું વ્યવસ્થિત સમજું છું, તો ગુરુ ભગવંતને પણ આપણે પૂછાય અને એ આપણે કરી અને ખરેખર ક્યાંક ઊંડા. હું તો આજે 1 ફૂટના ખાડો ખોદવાની વાત મારા પપ્પા અમને હંમેશા કહેતા હતા કે બેટા 10 ફૂટના એક ખાડા ખોદે ને તો પાણી નહીં આવે, તારે પાણી જોતું હોય ને તો 10 ફૂટનો એક ખાડો ખોદવો પડે. જ્યારે હું નાની હતી ને ત્યારે પણ મને અધ્યાત્મ બહુ ગમતું, પણ જે પણ કોઈ ગામમાં ક્યાંય પણ મને મળે તો બધું મને સાંભળવા જવું ગમે. તો ત્યારે એમણે મને આ ટોકી હતી, પણ મેં સાંભળ્યું નહોતું. પણ શાલીભદ્રભાઈજીને સાંભળ્યા પછી આમ ખરેખર આમ અંદરથી એક પસ્તાવો થાય છે કે શું કરે છે તું જીવ, ને શાના માટે? તોય ક્યાંય સુખ તો મળ્યું નથી, પર્યાયો બદલીને સુખ નથી મળ્યું, તો જીવ શા માટે તું કરે છે? એક ખાલી હેબિટથી. એટલે આ બધા મારા વિચારો હું વ્યક્ત કરું છું ને આઈ વિશ કે શાલીભદ્રભાઈ મને ખરેખર કરેક્ટ પણ કરી શકે. અને એ સુખ ન મળવા છતાંય આપણે કેમ એ કર્યા કરીએ છીએ? એટલે આમ ને આટલા બધી સત્સંગ કર્યા પછી, આટલા બધા વર્ષોથી ભક્તિ પણ કર્યા પછી, પણ તોય કેમ મને ઇવન એક અનુભવ પણ નાનો ના થયો? તો કંઈક તો મારામાં ખોટપ છે ને. Yeah, thank you, Harshaben, for the summary. Short Jalpai, she was going to do the summary in English, but avaj basic છે, so she asked me to read it. So I'll just read it out. If something is not working, seek out a different approach. Don't stay stuck. However, once you find something that works, don't be in a constant pursuit to chase new things, and start practicing going the mile using that approach to get mastery. So basically, focus on what is working in terms of, going deeper when you are seeking the truth, and then stay with it and go deeper within that. So शालीभद्र भाई ने, I'm just adding to it, शालीभद्र भाई ने एकत्व भावना और सातत्य से मुक्ति की बात की थी अगले सेशन में. वैरायटी से संसार होता है, और एक वस्तु, एक पदार्थ, एक भगवान,
एक साधना में भीतर और जाने से प्राप्ति होती है। सो बदलते पर्याय पे फोकस नहीं करके सातत्य एकत्व भावना में डूब जाना चाहिए, वैसा लास्ट टाइम शालीभद्र भाई ने बताया था। तो शालीभद्र भाई, if you can continue, तो I had some questions too later on this. So પ્રણામ. બોલો બોલો બેન. હા, એ ક્વેશ્ચન હતું કે when like આ જે સાધના છે, like you know the એકત્વ ભાવના, or what is my purpose, or what is my આપણે કહીએ ને કે આપણી જન્માંતરીય ધારા એ આપણે પોતે તો પકડી શકતા નથી, તો એ we would have to ask a guru, right, for that, or is that something that we can figure out ourselves? We can figure out. We cannot decide, but we can figure out. See, it's like a schooling process. When you say that the teaching process is with teacher, so it is absolutely correct. Teaching process is with teacher, but only teaching is not the issue, is not the concern. The main thing is I learn, then I revert it to the teacher, and the teacher let me learn in a proper way. So it goes mutually, it goes both the sides. If I say that guru will decide my janmantariya sadhana, so it can't happen one sidedly. Basically, first of all, I have to realize which aradhana or which activity makes me more happier. I mean, a bit more than anything else, a bit more. Then I can focus that. Okay, in this process, I am actually feeling something extra. Now that extra should be focused, and then that extra should be activated. Gradually, we will come to know that this extra or this activity is actually appealing me, it is attracting me. Then I will convey to Guru Bhagwan, because this is happening. Is it correct? Okay, it is my Brahm, my myth, whatever it is, but is it my thought, or do you really feel that? So then Guru Bhagwan will observe it, and then he will convey it, according to this observation, this could be a better way. So that is path to the Janmantariya sadhana realization. But first of all, the first step is it should be done by us only. So it is taken granted actually. मेरे हिसाब से ये गड़बड़ ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जो भी है सब गुरु भगवान को करना है, जो भी है सब भगवान को करना है। गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हम इतने इनएक्टिव हो गए कि हमने कुछ किया ही नहीं। और टेक्निकली प्रोसेस ये होना चाहिए था कि मैं स्टार्ट करूं, फिर गुरु या भगवान जो है वो कुछ एक्टिवेट कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड, because the first step was not taken, and I actually was waiting ke Guru Bhagwan will do something or Bhagwan will do something, but they can't, because the first step is not taken, and the first step should be taken by myself only. So that is the real issue with our dharma clarity, ke we believe that dharma activity will be done by us, but it will be rewarded by Guru Bhagwan only. It will be, appreciated by Guru Bhagwan only. See, the irony is that Michhami Dukadam means दुष्कृत गर्हा, दो धर्म हमें कहे गए थे, एक दुष्कृत गर्हा और एक सुकृत अनुमोदन। तो हमें ये सोचना चाहिए था, बचपन से ये शब्द हम सुन के आए हैं कि भाई पंचसूत्र जी भी यही बता रहा है, तथा भवित्व के परिपाप के उदय जो है उसके जो मुख्य कारण है, अगर वो भी हम सोचने या पढ़ने जाए तो हमें समझेगा कि भाई दो मुख्य कारण है, दुष्कृत की गर्हा और सुकृत का अनुमोदन। तो सुकृत का अनुमोदन मीन्स व्हाट? अगर मैं खुद मेरे सुकृत को सोचूंगा ही नहीं तो मैं अनुमोदन कैसे करूंगा? हम लोग ने क्या कर लिया, बचपन से ये सीख लिया कि सुकृत का अनुमोदन यानी क्या, कि दुनिया में लोगों ने जो भी अच्छा किया है उसका अनुमोदन करना, वो सुकृत का अनुमोदन हुआ।
उसमें से हम लोग ने हमारे खुद की सेल्फ को एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं, अपने सुकृत नहीं देखने के, अपने सिर्फ दुष्कृति देखने के। तो दैट इज द इश्यू विथ अस, कि हम हमारी सेल्फ को भी पार्शियली देखते हैं। मेरे में क्या क्या बुराई है अगर मुझे कोई पूछे, तो मेरे पास 1 घंटे के लिए बोलने का जैसा मटेरियल है, कंटेंट है, कि मेरे में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 1 घंटे तक। यानी अभाव मेरा स्वभाव हो गया। जो नहीं है उसके बारे में ही सोचना, उसके बारे में ही बोलना, वो मेरा स्वभाव हो गया। तो जो है उसकी मुझे वैल्यू नहीं हो रही है, उसको मैं वेटेज ही नहीं दे रहा हूं, उसको मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूं। तो मैंने जो सुकृत किए हैं वो भी मेरी एसेट है। ठीक है, मेरे पास लायबिलिटी बहुत है, उसकी ना नहीं है, लेकिन मेरे पास एसेट भी तो है। तो उस एसेट को अगर मैं देखूंगा ही नहीं, तो वो एसेट भी धीरे धीरे चली जाए। तो मैं अगर मेरे गुणों को फोकस नहीं करूंगा, तो गड़बड़ ये होगा कि वो गुण जो है वो पड़ा रहेगा ऐसे कैसे ही, और वो न नरिश करेगा, न वो ग्रो करेगा। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि मैं जो है मेरे गुणों को, मेरे सुकृतों को देखता ही नहीं हूं। तो मैं मेरी जन्मांतरीय साधना को ढूंढ ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं है मेरे पे। जन्मांतरीय साधना तब पता चलेगी जब मैं मेरे सुकृत को देखूंगा। अब सुकृत तो मैं मेरे देखता ही नहीं हूं। तो that is a real problem with us. હું એમ કહું કે મને પૂજા કરતી વખતે કઈ પૂજામાં ભાવ આવે છે, આવું આપણે 50 વર્ષથી પૂજા કરતા હશું, 60 વર્ષથી, તો પણ આપણે ક્યારેય ઓબ્ઝર્વ કરવાનો, ડીપ ફોકસ કરવાનો પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. આપણે એમ કહેશું કે પૂજામાં બહુ મજા આવી, પણ વિચારતા વિચારતા ક્યારેય આપણે એક એન્ડ પર નથી આવતા કે પૂજામાં મજા આવી એટલે એક્ઝેક્ટલી ક્યાં મજા આવી, એવું કયું યોગ હતો, એવો કયો યોગ હતો કે જેણે મને બહુ જ અપીલ કર્યો. તો ચલો હું આવતીકાલે એ યોગને વધારે સમય આપું, પરમ દિવસે એ યોગને હું થોડો ચિંતન મનન કરીને પછી જાઉં. તો શું થશે કે હું એકના એક ખાડામાં, એકની એક જગ્યાએ વારે ઘડીએ ખોદીશ. પણ આ ખોદવાનું તો જ શક્ય બને કે જો હું મને જ સ્ક્રુટિનાઇઝ કરીને જોઉં. પણ હું મારી લાઈફને જોતો જ નથી. હું જોઉં છું તો શું જોઉં છું કે મને ગુસ્સો બહુ આવે છે, જો મારે વારે ઘડીએ મારા માથું ફરી જાય છે. તો મને અભાવની આદત થઈ ગઈ છે કે હું બધું નેગેટિવ જોઉં છું. જે નથી એ જ જોવાનું, બસ. જે છે એની કોઈ કિંમત જ નહીં કરવાની. આ પ્રોબ્લેમ છે. આના કારણે હું જન્માંતરીય સાધના શોધી જ નથી શકતો. અને જો હું જ શોધી નહીં શકું, તો હું ગુરુ ભગવંત આગળ અભિવ્યક્ત શું કરીશ, અને ગુરુ ભગવંત ઓબ્ઝર્વ કેવી રીતે કરશે? કારણ કે અલ્ટિમેટલી મારો હાથ આગળ નહીં વધે ત્યાં સુધી ગુરુ ભગવંત તાળી કેવી રીતે વગાડશે? અને હું ઈચ્છું છું કે ગુરુ ભગવંત તાળી વગાડશે, જોજો. અરે પણ ભાઈ, એક હાથ તો મારો હોવો જોઈશે તાળીમાં. હું મારો તો કોઈ પુરુષાર્થ જ નથી મૂકતો. તો ઇવન તીર્થંકર સ્વયં જીવંત તીર્થંકર ભગવાન મળશે તો પણ હું કંઈ નહીં કરી શકું. હું તો ગુરુની બ્રહ્મા જીવું છું. ટેકનિકલી તો મને સાક્ષાત તીર્થંકર મળશે તોય કાંઈ નહીં થાય મારો ઉદ્ધાર. કારણ કે આવું અસંખ્ય વાર નહીં તો સંખ્યાતી વાર તો થયું જ છે કે મને સાક્ષાત તીર્થંકરનો યોગ પ્રાપ્ત થયો. અને બોલો તોય હું કોરે કોરો આવી ગયો. કેમ આવું થયું? તો કે મને કેટલીક વાર આવું થયું હશે કે મેં એવું વિચાર્યું કે નહીં, ભગવાન છે ને, બસ હવે બધું ભગવાન કરી લેશે, મને મોક્ષે લઈ જશે. આ લૌકિક માન્યતા છે કે જેમાં એમ કહેવાય કે તું ફક્ત મારા શરણે આવી જા, બસ બાકીનું બધું હું સંભાળી લઈશ. ના, લોકોત્તર શાસન આવું ન કહી શકે. લોકોત્તર શાસન એમ કે છે કે તું એમના શરણે જા, પણ શરણાગતિના ભાવને લઈને જા, તો એ કંઈક કરી શકશે. ફક્ત એના શરણે જવાથી કે એના ચરણ પકડવાથી તારું કાંઈ ભલું નહીં થાય. તારામાં ચરણ કરણાનું યોગ આવવો જોઈએ, તારામાં દ્રવ્યનું યોગ આવવો જોઈએ, તારામાં શરણાગતિની ભાવના આવી જોઈએ. તું શૂન્ય થઈને જા ભાઈ. તું શૂન્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી કેવી રીતે ભરશે તને? તો આવી કેટલીક ઉપર છલ્લી વાતોને ઊંડાણમાં ગયા વગર આપણે સમજી લીધી, અને એમાં ને એમાં જ આપણે આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ સમજવા લાગ્યા. અને એના કારણે આજે આપણું વર્તમાન જે છે એ, ભવિષ્ય તો ભગવાન જાણે કેટલું ઉજ્જવળ થશે, પણ વર્તમાન આપણું બહુ નબળું થઈ ગયું. તો જન્માંતરીય સાધનાઓ માટે સૌથી પહેલા આપણે આપણા જીવનના સારા પાસાઓને પણ જોતા શીખવું પડશે. હું તમને કહું, અત્યારે આપણે જેટલા જણ સાંભળીએ છીએ, તમે આમ 1-2 મિનિટ માટે પોઝ લઈએ, આપણે કાંઈ ન બોલીએ, અને આંખ બંધ કરીને વિચારીએ કે આપણે કેટલા સારા છીએ. આપણામાં કઈ કઈ સારાઈ છે, આપણે જીવનમાં કઈ કઈ બાબતોમાં એકચ્યુઅલી સારા છે. લોકોએ આપણને કીધા છે એમ નહીં, આપણને પોતાને ખબર છે કે ના, હું સારો છું. એમાં કઈ અહંકાર કરવાની વાત નથી, એમાં કઈ હું આમ મોટો છું એવો કઈ મોટો કોઈને દેખાડવાનો ભાવની વાત નથી.
પણ હું મારી જાતને તો કહી શકું કે દોસ્ત કે તું થોડો ના એમ તું સારો છે, આ બાબતમાં સારો છે, નબળો છે ત્યાં નબળો બી છે, પણ સારો છે ત્યાં સારો બી છે. તમે બાળકને ટ્રેન કરો કે ઘડતર કરો તો આપણે કોઈ દિવસ ફક્ત બાળકને એના દોષો દેખાડીને ક્યારેય એનો પ્રેમ નહીં જીતી શકીએ. તો આપણે આપણા મનને કેમ એવી રીતે ટ્રીટ કરવું છે કે હંમેશા એને કોસીએ જ રાખવું છે કે તારામાં આ નથી, તું આ નથી કરતો, તું આ નથી કરતો, તું ખરાબ છે, તું પ્રમાદી છે, તું આ છે. અરે એક મિનિટ, એ તમારું આ સાંભળે છે ને એ એનું કોપરેશન છે. તો કેટલીક વસ્તુઓમાં આપણે આપણી શુભતાને પણ જોતા રહેવું પડશે અને એ જ જન્માંતરે સાધના આપણને લઈ જશે એના તરફ. But Shalibhadra, it seems like there is a difference in the generation, right? કે previous generation હતી, older generation જે છે એ हाँ जो पहले की जो जनरेशन थी जो अभी मैच्योर है और ऑलरेडी एज हो चुकी है, तो वो पहले से ऐसे कहा गया था कि जो गुरु के प्रति समर्पण करना है और अपने दोषों की तरफ ध्यान रखना है. तो वो एक पहले की जनरेशन थी. और अभी की जनरेशन में इट्स द एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट? दैट वी आर टॉट इन स्कूल, वी आर टॉट इन कॉलेज that you should focus on your good qualities and stay positive, and you should be able to market yourself. It's world of social media, so it's the exact opposite. So dono, like, I agree with what you are saying, that self analysis is important, but are we prepared for it? Like, how do we prepare for it, right? We are biased either to just talk about our negatives, but kind of protect what is actually negative about us. Again, the ego is still protected, and on the other side we are either just showing off and talking about how great I am, and really not paying attention to our flaws. Tell me one thing, which is one of this is very bad, one is bad. Which one is very bad? One is the guilt feeling, right? Okay, having lots of negativities. And one is the fear. Okay, if I will see my good points, I will get my ego will be boosted. Which is very bad and which is Both are bad. agreed. But which is very bad? According to you, I'm asking. The one where I'm not paying, like, what were the two options? Sorry. See, one option is that when I feel the guilt feel, okay, I am very bad. Lots of negativities, lots of dosho are with me. And the other one is, okay, if I will see my good points, my ego will be boosted. Both are bad, agreed. But which is very bad? I think the one where the ego is boosted, because there is no scope of improvement. Acha, is there the scope of improvement in the first part? When I am I'm open to correction there, right? How? See, if I am seeing only I'm negativity, already talking about my negative points. So if somebody tells me, that's what the thing is. I'm only talking about it, talking only, nothing doing, only talking. The root problem is कि सिर्फ नेगेटिव देखने की वजह से नेगेटिव को इम्प्रूव करने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो आती नहीं, और नेगेटिव को इम्प्रूव करने के लिए भी पॉजिटिविटी चाहिए. नेगेटिविटी कभी नेगेटिविटी को तोड़ नहीं सकती, और पॉजिटिविटी तो हमेशा अच्छा देखने से ही आएगी, राइट? अगर मैं थोड़ा ये सेंस में और बात करूं कि मैं बहुत खराब हूं, ये सोच मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देगी, और मेरे में कितने अच्छे गुण है वो ज्यादा से ज्यादा मेरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देगी कि नहीं, जैसे मैं समझने लगा कि मैं हूं उससे भी अच्छा मेरे को मानने लगा हूं, तो अल्टीमेटली एक मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देगी और एक मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगी. विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट बेटर, यू फील? Both are wrong. Both are wrong, agreed. Again the same question, which is very bad and which is bad?
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जीवन में मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे आगे बढ़ने देगी, लेकिन आगे बढ़ने में एक विवेक नहीं होगा मेरे पास। अहंकार भी रहेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ कर सकता हूं, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही मुझे देगी। इंफीरियोरिटी तो कॉम्प्लेक्स तो मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने, वो उल्टा मुझे ये समझाएगी कि तू आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूं कि एक बैड है और एक वेरी बैड है। लेकिन हम ये जो सीख के आए हैं या हमें जो सिखाया गया है कि अपने दोष ही देखने और सुकृत सिर्फ दूसरों के देखने, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि सिर्फ दूसरों के सुकृत देखने की वजह से मुझ में सुकृत करने की जो इंस्पिरेशन आनी चाहिए थी वो आती ही नहीं है। मुझ में सुकृत करने की इंस्पिरेशन तब आएगी जब मैं कुछ छोटा सा सुकृत भी शुरू करूंगा। और छोटा सा सुकृत तो कब शुरू करूंगा जब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं सुकृत कर सकता हूं। वो मैं कब सोचूंगा जब मुझे रियलाइज होगा कि मैं अच्छा भी कुछ कर सकता हूं। तो वो तब होगा जब मैं कुछ अच्छा देखूंगा कि मुझ में अच्छा ही है। तो दोनों पैरेलल चलने चाहिए थे। जब जब दुष्कृत ग्रह आती थी तब तब सुकृत अनुमोदन होना चाहिए था। उसकी बदले में हम सिर्फ दुष्कृत ग्रह में चले गए और सुकृत अनुमोदन को साइड पे रख दिया। आप देखो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि मेरे वाइफ है, ठीक है। उनको एक, हम लोग तो चलो बचपन से गुरु भगवंतों के साथ, या पापा है, फुआ है मेरे, तो हम लोग ये सब एनवायरमेंट में थे और बचपन से रीडिंग बहुत था और गुरु कृपा भी अच्छी खासी भगवान की दया से प्राप्त थी। अब उनका जब शादी होने के बाद उनको ये सब एनवायरमेंट मिला तो उनको सबसे पहला प्रश्न हुआ 3-4 महीने तक सब लोगों को देखने के बाद कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी जन्मांतरीय साधना कौन सी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जन्मांतरीय साधना कैसी है। अब एब्सोल्यूट रॉ मटेरियल है, कुछ भी जीवन में इसके पहले वो ये दिशा में कुछ नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, तब से एक दिशा शुरू हुई कि चलो ठीक है अभी देखते हैं। तो 20 दिन तक जो भी हम लोग सब ये फील्ड में है, फुआ है, मैं हूँ, हम लोग ने ये लिटरल सेंस में एक सिलेबस बनाया कि कुछ भी चेंज किए बगैर सिर्फ 20-25 दिन तक सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है हर एक क्रिया के बाद કે કેવું રહ્યું। દરેક સારી ક્રિયા કર્યા પછીથી હું તમને પૂછીશ કે કેવું રહ્યું અને તમે મને કહેશો કે કેવું રહ્યું। અને એ સમયે તમારે એબ્સોલ્યુટ ફીલ તમારી કહેવાની કે તમારા મનમાં શું ચાલતું હતું, जो भी मन में है, जो भी मन में उस समय पे था वो सब। फिर उसके पॉइंट्स नोट डाउन करने लगे हम लोग। फिर ऐसा नहीं कि हम लोग तो डिसाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो उनको भी साइमल्टेनियसली समझ में आना चाहिए कि कैसे डिसीजन होता है। तो नोट डाउन करने लगे। 20 दिन की एक बुक बनी। 20 दिन की बुक बनने के बाद वो बुक लेके हम लोग बैठे और लेके बैठे तब पता चला, उनको मैंने दिखाया कि देखो आपने इस समय पे ये बोला था, इस समय पे ये बोला था। तो ये कॉमनली अगर देखने जाए तो पूरे दिन के रूटीन में एक भी नई क्रिया शुरू नहीं की है। जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें से ये क्रिया ऐसी है जिसमें आपको हमेशा ऐसा लगा है कि ये बहुत अपील करती है। तो एक काम करते हैं, अगले 10 दिन के लिए ये वाली क्रिया को फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो वो एक हफ्ते का ट्रायल आया कि जिसमें वो वाली प्रक्रिया जो है उसे बार बार करने लगे, उसमें और थोड़ा अच्छे भाव से हम लोग बैठने लगे, उसको थोड़ा समय ज्यादा दिया। क्या हुआ कि वो पूजा बहुत अच्छी लगने लगी, वो क्रिया बहुत अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे उसमें से अपने आप एक बोध मिलता गया। वो बोध की वजह से पता चला कि इनमें से एक भी क्रिया जन्मंतरीय साधना नहीं लगती है, कोई एक ये दूसरी प्रक्रिया है जो अब तक हार्डली कई थोड़ी बार की थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपील करती है। और आज थोड़े साल हो गए कि वो प्रक्रिया का नाम पड़ता है और ऐसे ही लगता है कि बस यही है, पूरी दुनिया में यही प्रक्रिया है जो करनी चाहिए। इतने अच्छे भाव वो प्रक्रिया में आते हैं। तो ये ढूंढने की वजह से आया। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोगों को ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि नेगेटिविटी को साइड पे रख दिया, पॉजिटिविटी को भी उस तरफ से विराम दिया कि हम लोग कर सकते हैं अच्छा, खाली कौन सी चीज में अच्छे भाव आते हैं या अच्छे साहजिक तरीके से आगे बढ़ते हैं वो ऑब्जर्व करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन ही नहीं आया हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास दुष्कृत ग्रह का टाइम है, हमारे पास खुद को ऑब्जर्व करने का टाइम है। तो ये गड़बड़ है और ये प्रोसेस नहीं आ रहा है। उसकी वजह से
हर एक क्रिया को थोड़ा थोड़ा टाइम गया, लेकिन एक भी क्रिया अपनी खुद की नहीं बनी कि जो अगले जन्म में साथ में आएगी, ऐसा विश्वास हमें मिले कि भाई अगले जन्म में कोई नाम भी बोलेगा ये प्रक्रिया का, तो डेफिनेटली मेरे माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा और मेरा मति ज्ञान जो है वो जाति स्मरण की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिपीटेडली उसको अच्छा गिना है, रिपीटेडली मैंने उसको खुद का गिना है। મારી પોતી કી પ્રક્રિયા, મારી પ્રક્રિયા, આવું નથી થતું આપણી સાથે, અને એ કરવાનું છે. पर इन्हें उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि लाइक जो अनादिकाल से हमने किया है वही हमें अच्छा लगे, तो नहीं, मतलब लेकिन सोल्यूशन साथ में नहीं ऐसे निकलेगा ना। नहीं, हम लोग सिर्फ अकेले तो है नहीं, साथ में गुरु भगवंत होंगे, सहायक मित्र होंगे जो हमें हाँ। एक्चुअली रूप से पहचानते हैं, तो वो हमें बोल भी पाएंगे कि नहीं, तो आप बोल रहे हो कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भ्रम है, क्योंकि ये इसकी लिए वजह से अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपको कंफर्ट जोन दे रहा है. तो कंफर्ट हाँ। जोन के फीलिंग के भीतर सहजता से देखना है, तो वो करेक्शन भी आता रहेगा. अकेले हम्म करने की प्रक्रिया तो ये है ही नहीं, 100% नहीं है. हम्म साथ में एक व्यक्ति तो आपको चाहिए ही जो आपको समझ रहा है. देखिए, इसमें गुरु की भी ज्यादा वैल्यू मैं नहीं गिनता हूँ, क्योंकि गुरु यानी ऐसा व्यक्ति नहीं जो महान है. गुरु यानी वो व्यक्ति जो मुझे जानता है. वो शायद महान न भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म लेकिन वो मुझे एकदम अंतरंग जगत से जानता हो, हम्म, जो एब्सोल्युटली कल्याण नितांत मित्र। मेरी वृत्ति से भी वाकिफ हो. हम्म आप उसको कोई भी नाम दो, कल्याण मित्र दो, सखी सखा दो, कोई भी नाम दो चलेगा, लेकिन नाम में कोई ज्यादा मतलब नहीं है. मेन बात यह है कि मेरी अंतरंग दशा को वो जानता है. तो क्या होगा कि मैं जैसे ही बोलूंगा कि नहीं, जो આ પૂજામાં બહુ મજા આવે છે, તો બે ચાર સવાલ પૂછ્યા પછી તરત એ કહેશે કે અચ્છા, પણ તું એક વિચાર કર કે તું આ ક્રિયા બેસીને કરે છે. સામાન્યથી જો તને મજા આવતી હોય તો તને ઉમળકો થાય, તો તું ઊભો કેમ નથી થતો? તો એનો મતલબ કે તું બેસે છે ને એટલે તને ગમ્યું છે, આ તારી આળસ છે, આ તારી रुचि નથી. तो वो उसको समझ में आ गया, हाँ यार मैं एक्चुअली तो आलसी हुई, तो आलस की वजह से ये क्रिया मुझे अच्छी लग रही है. तो ये समझाने वाला साइड बाय साइड कोई साथ में चाहिए. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकेले ही करना है, साथ में गुरु भगवंत गिनो या जो भी गिनो, वो एक व्यक्ति अपने को चाहिए. थैंक यू, मेक सेंस। लेकिन ये ढूंढना चाहिए, ये 100% ढूंढना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही ये है. जन्मांतरीय साधना तिर्यंच के भव में या देवता के भव में हम लोग कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे. वो भव के स्वभाव में ही नहीं है ये डेप्थ. ये सिर्फ और सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य के स्वभाव का ही कर्तृत्व है. तो अगर ये जन्म खत्म हो जाएगा और तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि जन्मांतरीय साधना ये है, तो होगा क्या कि वो जो एक जगह पे 20 फुट वाला खड्डा खोदना है वो नहीं होगा, क्योंकि पूर्व भव में कोई एक जगह पे 10 फुट खोदा था, और ये भव में तो मैं हर जगह पे कुछ अलग अलग खोद रहा हूँ. तो पूर्व भव के 10 था, उसमें 11वां करना चाहिए था मुझे ये भव में. तो मेरा तो सब वेस्ट हो जाएगा अगर मैं वो 10 फुट वाला गड्ढा ढूंढूंगा नहीं. तो ये तो होना ही चाहिए. ओके, હજી છે કઈ કોઈને? Anyone has any other questions, more clarification on this, or shall we move forward? And maybe I missed the last session, Eamon, but Janmantri Kriya is basically the one which you carry forward in the next bhav. Is that right? जन्मांतरीय क्रिया यानी हाँ. ऐसी प्रक्रिया जो हम अनादिकाल से नहीं, लेकिन थोड़े भव से भी करते आए हैं, वैसी शुभ वाली प्रक्रिया. वैसे तो देखने जाए ना, तो देखिए जन्मांतरीय क्रिया अगर देखने जाएंगे तो भोजन लेना वो जन्मांतरीय क्रिया है. बालक जैसे ही पैदा होता है तुरंत उसको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उसे भूख लग जाती है, और वो भूख का निवारण जैसे ही जहां से हो सकता है उसे वो ढूंढ लेता है. तो जन्मांतरीय क्रिया ये है. लेकिन हमें जन्मांतरीय क्रिया नहीं ढूंढनी है, हमें जन्मांतरीय योग ढूंढना है. योग क्या होता है? तो योग वो शुभता है जो पूर्व भवों में मैंने रिपीटेडली जिसका सेवन किया था. तो वो शुभता कौन सी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन में अभी शुभता में देखने जाओ तो बहुत सारी है, कि भाई मैं उदार भी हूँ, कोई गरीब को देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है, मैं उसको दे भी देता हूँ.
मैं गुणियल भी हूँ कि कोई अच्छा व्यक्ति दिखे तो मुझे उसकी अनुमोदना करने की या उसकी भक्ति करने की इच्छा भी हो जाती है। मैं प्रभु की भक्ति का भी वो हूँ, फैन हूँ कि मुझे प्रभु के पास जाता हूँ तो उनके प्रति सहज सद्भाव अहोभाव आता है। मैं गुरु भक्त भी हूँ, कोई गुरु भगवान प्रवचन देते हैं या गुरु भगवान की बात आती है तो मुझे उनके प्रति सद्भावना संवेदना जाग जाती है। तो इसका मतलब मेरे में बहुत सारे गुण भी है। अब इसमें से मुझे वो गुण ढूंढना है जो पूर्व भव में भी रिपीटेडली मैंने जिसका सेवन किया हो। क्या फर्क पड़ेगा अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी बहुत सारी आगे की प्रक्रिया, आगे बढ़ने की प्रक्रिया वो सिंप्लीफाई होके तुरंत मेरे को ये क्लियर हो जाएगी, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो ढूंढना जरूरी है। और वो एक योग ऐसा है जो मुझे बहुत शीघ्रता से मेरे मार्ग के ऊपर लेके जाएगा। Got it. हम्म। समझ आया। आप और मैं, बहुत सारे जन को ये, अभी तो सोशल मीडिया है तो पता चलता है कि कितने सारे जन ऐसे होते हैं छोटी उम्र में जिनको भगवत गीता आ जाती है। छोटी उम्र में वो पढ़ाई लिखाई में इतने पावरफुल होते हैं कि जो दूसरे बच्चों से कुछ अनपैरेलल होता है। तो हम इसे अतीन्द्रिय शक्ति का नाम देते हैं। बेसिकली वो अतीन्द्रिय शक्ति नहीं है, वो जन्मांतरीय योग है। जिसकी अनुकूलता उसे मिल गई तो अंदर से वो फटाक से बाहर आ गया, एकदम फास्ट रैपिडली बाहर आ गया। दैट इज जन्मांतरीय योग। तो वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है? इतने इतने शुभ क्रिया करने के बाद भी हमें कोई भी शुभ क्रिया एकदम अपील नहीं करती है। अगर कि नहीं, ये तो बहुत मजा आया, बहुत, यानी इवन इतना मजा कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। उतना मजा आया। एक बार किया तो आया, दूसरी बार किया तो भी आया, रिपीटेडली करता हूं तो भी आ रहा है। तो उसका मतलब कि ये प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन किधर से आया? मैंने तो 4-5 बार ही की है ये प्रक्रिया। तो ये अट्रैक्शन पूर्व भव के वो जो संस्कार है उस संस्कार से आ रहा है। लेकिन ये सब समझने के लिए मुझे मेरी सेल्फ का फोकस करना पड़ेगा। मुझे मेरी हर एक एक्ट को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरे पूरे दिन में मैं एग्जैक्टली कहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ। ये फीलिंग को सबसे पहले तो न्याय देना पड़ेगा। बेसिकली हमारा रूटीन इतना फास्ट है कि हम फीलिंग से अगर देखने जाए तो पूरे दिन की पुण्य या पाप छोड़ दे, अच्छी या बुरी प्रक्रिया छोड़ दे, पूरे दिन में फीलिंग से करने वाली प्रक्रिया हमारे जीवन में हार्डली कुछ बची है। इतने मोनोटोनस, इतने मिकेनाइज्ड कि धर्म हुआ, पूजा हुई, बिजनेस हुआ, फैमिली लाइफ हुई, हर चीज में हम मोनोटोनस हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझो आज कोई छोटा बच्चा है ना, उस छोटे बच्चे के साथ खेलने के टाइम पे हमें मजा आता है, लेकिन वो मजा किसी एक भी प्रक्रिया में नहीं आता है। यानी कोई एक व्यक्ति जिसे आज मिले तो भी मजा आया, कल मिले तो भी मजा आ रहा है, 2-4 दिन के बाद मिले तो भी मजा आ रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है हमारे जीवन में। ऐसी कोई क्रिया नहीं है। कल कस्टमर से बात करने के लिए बैठे थे तो बहुत मजा आया, चलो आज भी मजा आया, 2-4 दिन के बाद भी मजा आया। नहीं होता है ये। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली कोई भी काम फीलिंग से करते ही नहीं है। अगर करेंगे तो हमें समझेगा कि ये फीलिंग बढ़ रही है, लेकिन हम सिर्फ ये हमारा कर्तव्य है, एक पेड पर्सन कैसा हो उस हिसाब से हम जीते हैं कि भाई चलो इतना काम कर लो, रूटीन निपटा लो और पगार मिल जाएगा, किस्सा खत्म कर डालो। वो तरीके से हम पूरी लाइफ निकाल डालते हैं। फिर वो धर्म हो, सामायिक हो, या रूटीन फैमिली लाइफ हो, माता पिता की भक्ति भी हो तो भी उन्होंने बोला वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ उसमें? कर लिया वो तो ठीक है, एक सामान्य ये है कि भाई उन्होंने बोला और जरूरत थी तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरी फीलिंग कहाँ पे है? वो करने के टाइम पे मुझे कुछ कृतज्ञता का भाव आए, मुझे कुछ विनय का भाव आए, वैसी सोच भी नहीं है मेरी। तो मैं तो कर लेता हूँ सिर्फ। तो बिजनेस के टाइम पे भी अगर मैं सोचूं तो मैं सुबह निकलता हूं तो कमाने के लिए निकलता हूं, लेकिन हर एक कार्य करने के टाइम पे मुझे फील भी नहीं आती है कि चलो मैं मेरे गोल से थोड़ा नजदीक गया। वो सोचने का भी मैं पूरे दिन में टाइम नहीं निकालता हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ धर्म या अधर्म, ये एक्चुअली कोई डिफरेंस है ही नहीं। धर्म और अधर्म हमारी सोच है। बेसिकली तो हमें फोकस करना है कि भाई कोई एक काम अच्छे से करो और करने के बाद भी उसे थोड़ा चेरिश करो, उसे थोड़ा एंजॉय करूं। ये एंजॉयमेंट शब्द जो है ना, वो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने इतना गलत तरीके से हमें दे दिया है कि एंजॉयमेंट बोले तो क्या, तो पिक्चर देखना, घूमना फिरना, ये हम्म एंजॉयमेंट है। टेक्निकल
देखने जाओगे तो वो भी एक बर्डन है। अभी अभी तो ये जनरेशन को देख के लगता है कि इनके लिए तो इंजॉयमेंट भी एक बर्डन है, क्योंकि उसको वो करने के टाइम पे भी वो खुद वहां पे हाजिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। वो टाइम पे भी उसको दूसरी सोच है कि इसके बाद में क्या करूंगा। तो वेयर इज द इंजॉयमेंट? टेक्निकली तो सम्यक दर्शन इंजॉयमेंट की जो व्याख्या दे रहा है, वो हमें आज नहीं तो कल स्वीकारनी ही पड़ेगी पूरी दुनिया को कि प्रेजेंट में रहना ही इंजॉयमेंट है। तो वो हमारी लाइफ में कहाँ पे है? कौन सी क्रिया है जिसमें हम प्रेजेंट में होते हैं? आप सोचो, मैं पूजा करने या धर्म करने बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है 2-4 मिनट के बाद अभी ठीक है, लेकिन इतने भाव नहीं आ रहे। मैं होटल में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जाने का है, चलो मैं जाता हूँ, लेकिन उधर जाने के बाद लगता है कि यार कितने पाप, ये लोग भक्ष होगा भक्ष होगा, क्या करते रहेंगे, हे भगवान मैं क्यों यहाँ पे आया। ठीक है अभी निकलो तो ठीक है। एक भी जगह नहीं है जहां पे हम फोकस होते हैं या फील करके उसको एक्चुअल प्रेजेंट में रहते हैं। और केवल ज्ञानी भगवंत या साधक जीव ये क्यों इतने आनंदित रहते हैं? क्योंकि वो लोग हर एक क्रिया में प्रेजेंट है। हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हम चैतन्य का जो लक्षण है कि चैतन्य कौन है, जो जीवंत है, वो लाइवलीनेस, वो हमसे मिस हो गई है, वो हमसे दूर हो गई है। एक भी प्रक्रिया में लाइवलीनेस नहीं बची है हमारी। मैं चलो ऐसा मान के चलूं कि हमें धर्म में रुचि नहीं है, छोड़ दो, नहीं करना है, एक बार साइड पे रख देते हैं। कौन सा पाप भी ऐसा है जिसमें लाइवलीनेस है, यानी ऐसा लगे कि यस मैंने आज जिंदगी जी ली बॉस, ये जो है ना ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट चल रहा है। वैसा तो पाप भी नहीं है अपनी लाइफ। तो ये हम लोग एक्चुअली पूरी जिंदगी किया क्या? अगर पाप भी लाइवलीनेस से नहीं हुआ, धर्म भी लाइवलीनेस से नहीं हुआ, तो हम कर क्या क्या किया? तो वो लाइवलीनेस इज एसेंशियल। और वो लाइवलीनेस कहाँ पे ज्यादा आएगी? जहां पे जन्मांतरीय योग मिलेगा, वहां पे लाइवलीनेस बहुत आसानी से आ जाएगी और बहुत तुरंत आएगी। यानी हम फील कर पाएंगे कि यस दिस इज द वन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यस एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए। तो वो यही चाहिए था वाला जो डिसीजन है, वो जन्मांतरीय योग का डिसीजन है कि यस ये वाली प्रक्रिया, इससे ही मैं 100% करूंगा। मुझे ऐसा ध्यान में है कि मैं जब नवानु के लिए गया था तो एक गुरु भगवान ने मुझे बोला था कि अनंत अनंत आत्माओं ने शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर अपनी मुक्ति को पाया है। अब अगर हम अरियंत के आत्मा है तो बात अलग है, अगर हम सिद्ध के आत्मा है तो प्रोबेबिलिटी के एंगल से अगर देखने जाए तो पूरे जगत में शत्रुंजय गिरिराज वो ऐसी जगह है जहां पे हाईएस्ट मोक्ष लोगों का हुआ है। तो चांस है कि हमारा भी वहां पे होगा, हो सकता है। बात ये है, अब ये भाव में तो होने वाला नहीं है। तो ये एक टास्क मैं लेके गया था मेरी नवानु के टाइम कि मैं शत्रुंजय के हर एक कोने में, हर एक पाथ के ऊपर मैं थोड़ा टाइम बिताऊंगा, रोज अलग अलग जगह पकड़ के, कि जहां पे बैठ के मैं सोचूंगा कि ये जगह मुझे अपील कर रही है, ये जगह मुझे खींच रही है, ये जगह में ऐसे कोई वाइब्रेशन है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है। तो मुझे हर एक जगह को टेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे समझेगा कि भविष्य में भी ये जगह या भूतकाल में भी ये जगह मेरी उपकारक जगह थी। मैं कभी ना कभी तो शत्रुंजय में आया रहूंगा। अगर मैं जैन धर्म में मुझे मिला है तो उसका मतलब कि मैंने पूर्व में कुछ सुकृत किया है, और सुकृत में शत्रुंजय कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, तो ही मुझे नव्वाणु का मन हुआ। तो मुझे नव्वाणु के दरमियान वो ढूंढना है कि इसमें से कौन सी जगह है जिस जगह ने मुझे आज नव्वाणु की भावना दी। तो पूरी नव्वाणु मेरी ऐसी थी। लेकिन आप सोचो कि कितने जनों की नव्वाणु ऐसी हुई होगी। लोगों के लिए नव्वाणु यानी क्या होता है कि एक नंबर है जिसे हमें अचीव करना है कि आज कितनी यात्रा हुई। कोई अगर आपसे मिलेगा ना, हम लोग नव्वाणु में देखते थे कि 99.9 या तो 100% लोगों को अगर वो नीचे उतरता है तो सबसे पहला और आखिरी सवाल एक ही होता है लोगों के पास उनको पूछने के लिए कि आज कितनी यात्रा हुई। बोलेगा कि 4 हुई, 3 हुई, अच्छा ठीक है, बस किस्सा खत्म। बहुत रेयरली कोई लोग पूछेगा कि आज कैसी यात्रा हुई। और नॉर्मली तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो लोगों का जवाब ये कैसे यानी क्या, रेगुलर यात्रा हुई उतनी हुई। अच्छा अगर वो फील भी करता है तो फील क्या करेगा, आज यात्रा बहुत अच्छी हुई, थोड़ा भी थकान का अनुभव नहीं हुआ, आज इतना अच्छा क्लाइमेट था कि आज कोई भी थकान नहीं हुई। आप सोचो इसमें
शरीर ही मेरा फोकस है, यात्रा तो फोकस ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो गड़बड़ है, ये क्रिया की समझ मेरी, कि मैं गया हूं 99 करने के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली एक फिगर के पीछे ही गया हूं, एक नंबर के पीछे ही गया हूं। मुझे वो नंबर अचीव करना है, मुझे 99 अचीव नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि से 99 यानी 108 यात्रा, दैट इज इट। लेकिन यात्रा क्यों, ये यात्रा करनी क्यों है? क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने यहाँ पे यात्रा की थी, तो मुझे उनको फॉलो करना है। मुझे वर्षित अब क्यों करना है? क्योंकि ऋषभदेव भगवान 400 दिन तक भूखे रहे थे, तो मुझे उनको फॉलो करना है। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस आशय से कि मुझे उनको फॉलो करना है, तो मेरे प्रोसेस में वो तो होने चाहिए, लेकिन वो मेरे प्रोसेस से गायब होते हैं। पूरी यात्रा 99 के दरमियान ऋषभदेव भगवान कहीं पे नहीं होते। होता है तो क्या होता है कि आज यात्रा अच्छी हुई, क्लाइमेट अच्छा था, आज मेरे साथ ये था, आज मुझे पूजा का ये लाभ मिल गया, लाइन कम थी, अभिषेक इतना अच्छा हो गया। भगवान किधर है? जिनके लिए 99 की थी वो किधर है? वो गोल किधर है? वो कहीं पे भी नहीं आता है। अल्टीमेटली पूरी 99 हो जाती है, पूरी जिंदगी हम लोग ये सोचते हैं कि 99 हो गई, और टेक्निकली 99 स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्य बांधा और उसके बाद तो उसके ऊपर हमने चले ही नहीं। तो एग्जैक्ट जो ये 99 की गड़बड़ है, वो सेम हमारे हर एक धर्म में होती है, इवन हर एक पाप में भी, यानी हर एक जीवन की क्रिया में भी होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लक्ष्य बांधते ही नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर लक्ष्य बांध भी लिया, तो लक्ष्य के प्रति हम वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है। रोज सोचते नहीं है कि 1 लाख रुपया कमाना था, तो आज कितना हुआ? 10,000 हुआ, चलो ठीक है, तो कल 90,000 की ट्राई करूंगा। ये वाला जो प्रोसेस है, वो धर्म में से गायब है। आज 3 काउंटिंग सामायिक का की, लक्ष्य है खाली, राइट? ज्यादा मतलब ये एक नंबर अचीव करना है तो इतनी सामायिक या इतनी यात्रा या इतने आम्बिल, सिर्फ उतना ही हाँ, लक्ष्य रह गया है। यानी मैं क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये एक सामान्य बात हो रही है कि हम लोग बचपन में तो इतने सारे तपश्चर्या कम देखते थे लोगों में। आजकल ये लास्ट 20-25 साल में तपश्चर्या का योग बहुत बढ़ गया। तो हम्म। हर एक जन जब प्रेरणा करता है कि भाई वर्धमान तप की होली करनी है, वर्धमान तप की होली करनी है, तो एक सामान्य से मन में प्रश्न उठता है कि कभी भी हम लोग क्या ये सोचते हैं कि कितनी होली होने के बाद मोक्ष मिलेगा? कहीं पे भी लिखा हुआ मिलता है कि भाई चलो 100 होली कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा? तो मुझे चाहिए मोक्ष, और मैं भाग रहा हूं नंबर के पीछे। हम्म। टेक्निकली मोक्ष का मार्ग तो ये है कि अनाहारी पद चाहिए, तो अनाहारी के मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। उसमें बीच में एक स्टेशन या प्लेटफॉर्म आता है आइमबिल का। अब मैंने वो प्लेटफॉर्म को डेकोरेशन शुरू कर दिया कि ये प्लेटफॉर्म को मैं 100 ओली से डेकोरेट करूंगा, मैं ये ओली करूंगा, वो ओली करूंगा। अरे भाई, ये तो प्लेटफॉर्म था यार, हम्म। गोल तो अलग। 100 ओली करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, अनाहरी पद की प्रैक्टिस करने से मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन मेरे पूरे आइमबिल में या 100 ओली के अंदर अनाहरी पद की प्रैक्टिस तो आई ही नहीं, वो तो मिस हो गई। हुआ तो क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा? क्या आइमबिल में मैं 2 द्रव्य वापरूंगा, 3 द्रव्य वापरूंगा? अरे भाई, तुम 30 द्रव्य वापरो, तुम 1 द्रव्य वापरो। द्रव्य क्या नंबर महत्व का इतना नहीं है जितना महत्व इसका है कि द्रव्य 1 या 2 वापरने के बाद क्या होना चाहिए। हम इतने लेवल तक आ जाते हैं कि हम पूरी आसक्ति छोड़ के 2 द्रव्य के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन 2 द्रव्य वापरने के बाद जो करना चाहिए वो हम करते ही नहीं। मेनली वो 2 द्रव्य वापरने के बाद ये सोचना चाहिए था कि भाई देखो, शरीर को समझाना चाहिए था कि देखो भाई, 2 ही द्रव्य वापरे, फिर भी पूरे दिन में तुम नहीं मर गए हो, तुम जिंदा हो। उसका मतलब आहार से तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये समझो। पूरा दिन आहार आहार जो आसक्ति है उसे निकालो, क्योंकि 2 आहार, 2 एक ही टाइम खाने से भी तुम मरे नहीं हो। ये मन के साथ बैठ के उसको समझाना चाहिए था। अब वो तो हमारी विधि में आता ही नहीं है कहीं पे भी। विधि में तो 12 खमासा मन, 12 लोग उसका कौसा गया, जो भी है वो सब आ गया। अब ये वाली चिंतन मनन की विधि तो हम लोग सीखे ही नहीं है, क्योंकि वो कोई पुस्तक में मिली नहीं है। तो गड़बड़ ये होती है कि जो एक्चुअल प्रोसेस था वो तो लेफ्ट अलोन, वो पूरी जिंदगी में कहीं पे भी दिखता नहीं। और लास्ट में अगर कोई पूछे कि होली क्यों की, तो जवाब तो हमारा फिक्स है, मोक्ष मोक्ष के लिए की थी। मोक्ष का तो ये मार्ग ही नहीं है।
मैं क्रिटिसिज्म के मोड में नहीं हूं, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्रियात्मक धर्म के बगैर कभी भी जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सिर्फ क्रियात्मक धर्म से भी हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी एक सत्य है। हम्म, तो धर्म के अंदर समन्वय होना चाहिए। निश्चय और व्यवहार अगर समन्वित नहीं होते हैं तो अकेला निश्चय भी गलत है और अकेला व्यवहार भी गलत है, दोनों में से एक भी हमें काम में नहीं आने वाला है। और हमारी आजकल की लाइफ है, आजकल की जो थियरी है वो यही समझा रही है कि या तो वो सिर्फ व्यवहार और या तो सिर्फ निश्चय। फिर वो व्यवहार का क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि ये करने से क्या मिलता है, अनंत काल में अनंत बार इतने धर्म किए, क्या हुआ, कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निश्चय नहीं था। तो अभी क्या करना है? तो चलो निश्चय की बात करते हैं। अरे रुको भाई, ये तो फुलिशनेस है कि एक एक्सट्रीम नहीं हुई तो चलो दूसरी एक्सट्रीम ले लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बीच का रास्ता लेना है, समाधान का रास्ता लेना है, समन्वय का रास्ता लेना है। तो ये नहीं कि अनंत काल में नहीं हुआ तो ये काल में भी नहीं होगा, लेकिन अनंत काल में कहाँ पे मिस हुआ मुझे वो ढूंढना है। तो सिर्फ व्यवहार या सिर्फ निश्चय वो कभी भी हमें मुक्ति नहीं दिला पाएगा। हमें हर एक धर्म में, हर एक भौतिक क्रिया में भी समन्वय से ही करना पड़ेगा कार्य। तो ये एक बात ये लक्ष्य में लानी चाहिए कि जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर जन्मांतरीय योग ढूंढने का साधन, ये जो प्रक्रिया है वो ये है कि हर एक जगह को स्लो मोशन में, हर एक क्रिया को स्लो मोशन में देखना शुरू करें। मैं एक्चुअली बैठता था 99 में शत्रुंजय के ऑलमोस्ट हर एक स्टेप, क्या हर एक आजू बाजू की जो, अच्छा दूसरी तो मेरी थॉट ये थी कि ये जो स्टेप है शत्रुंजय के वो बने 1998 में। अब मैं जो बोल रहा हूँ કે કણ કણમાં અનંત સિદ્ધ્યા, હવે આ તો સિમેન્ટના કણમાં કે પગથિયાના કણમાં તો 1998 પછી કોઈ સિદ્ધ્યું નથી, 1998 પછી તો કોઈ મોક્ષ નથી, કોઈ નથી। હવે હું આ પગથિયા ઉપર ચલીને શું કરીશ? ये जो स्टेप्स है वो एक्चुअली मुझे कौन सा स्पर्श, किसका स्पर्श देंगे? ये तो 1998 में जो लेबर थे उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसमें तो कहाँ से स्पर्श मिलेगा मुझे? तो मुझे ये स्टेप्स के प्रति अश्रद्धा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ये सोचना पड़ेगा कि जो भी ओरिजिनली शत्रुंजय की प्राचीनता है मुझे उससे भी स्पर्शना होगा यात्रा के दरमियान, तब जाके मेरा एक्चुअल स्पर्श होगा। आप सोचो 50 साल से यात्रा करने के बावजूद हमें ये थॉट ही नहीं आती है कि मैं जिसके ऊपर पैर रख रहा हूं वो भूमि को तो एक भी सिद्धात्मा ने स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि 1998 के बाद तो कोई सिद्धात्मा नहीं आया है। तो मुझे वो भूमि के ऊपर बैठना चाहिए जो साइड में है, जो प्राचीन है, जहाँ पे पैर रख सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल कोई काम नहीं हुआ है मॉडर्नाइजेशन वाला। तो वहां पे कुछ स्पंदन है, वाइब्रेशन तो वहां पे है। यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, ये लेयर है, ये लेयर के नीचे दबा हुआ सब है। लेकिन डायरेक्ट अगर मुझे एक विस्फोट चाहिए वाइब्रेशन का तो वो वाइब्रेशन का विस्फोट तो मुझे ओरिजिनल कोई जगह से मिलेगा। तो वो प्राचीन भूमि मुझे ये शत्रुंजय के ऊपर ढूंढनी चाहिए। तो मैं तो एक भी यात्रा ऐसी नहीं थी जो सिर्फ स्टेप्स के ऊपर थी मैंने की थी। वो तो है ऐसे रास्ते जो अभी भी प्राचीन कीड़ी है वहां पे, उधर से जाके कर सकते हैं। लेकिन वो आनंद ही पूरा अलग है। लेकिन वो कब मिलता है? जब मेरा एक्चुअल लक्ष्य भी है और मेरा कमिटमेंट भी है। तो ऐसी एक यात्रा भी मुझे तो सेटिस्फेक्शन देगी कि जिसमें मैं बैठता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं जहां पे बैठा हूं वहां पे असंख्य आत्मा बैठे थे और उसमें से संख्यात आत्माओं ने बैठ के साधना की थी। साधना के दरमियान उन्होंने ऐसी ऐसी भावनाएं अंदर से की होगी खड़ी, और ऐसा ऐसा एक पुरुषार्थ किया होगा। यहाँ पे ही उन्होंने क्षपक श्रेणी मांडी होगी, यहाँ से ही उनके मन में विस्फोट हुआ होगा, ज्ञान का विस्फोट हुआ होगा, दर्शन का विस्फोट हुआ होगा। ये फील कब करूंगा मैं अगर सिर्फ मैं भागता रहूंगा? तो ये हर एक क्रिया में ऐसा सोचना चाहिए, और तो ही वो एक्चुअल एंजॉयमेंट मिलेगा, वो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बाकी तो ये एंजॉयमेंट नहीं है। ये जैसे आजकल यहाँ पे इंडिया में भक्ति के नाम पे सिम्फनी चलती है, कंसर्ट चलते हैं सब, और लोगों को लगता है कि आज बहुत मजा आया भक्ति में। ये जो भी है ये सिर्फ भौतिकता और इंद्रिय का सुख है। कान में अच्छा लगा सुनने के बाद वो जो भी है वो कान मेरी इंद्रिय है, मैं नहीं हूं। और इंद्रिय का सुख ये तो त्याज्य है। तो सिर्फ कान को अच्छा लगे वो सुनना, वो तो इंद्रिय का सुख है, वो भक्ति नहीं हो सकती कभी भी।
तो जैसे ऐसी क्लैरिटी के बिगैर क्या होने लगा कि आजकल धीरे धीरे यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड हो गया कि भक्ति करनी है तो चलो सिम्फनी में जाते हैं, चलो कंसर्ट में जाते हैं, चलो हम लोग ये अच्छा म्यूजिक लगाते हैं, चलो कोई बैंड वाले को बुलाओ, चलो एक ये करो, आज बहुत नाचेंगे। रुको हम्म भाई, ये भ्रम है, ये भक्ति नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि ये भ्रम में से बाहर निकल के भक्ति का जो योग है वो योग में जाना पड़ेगा। कई बार यहाँ पे ऐसा सुनने को मिलता है कि रावण और मंदोदरी अष्टापद पे गए थे, तो उन्होंने नृत्य किया था, तो उनको वहां पे ही देखो ये हो गया था, उनका कल्याण हो गया था। तो ये एग्जाम्पल को मैं फॉलो कैसे करता हूँ, तो जब कहीं पे भी कोई अच्छा म्यूजिक बजता है तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि चलो अभी नाचो, रावण ने और मंदोदरी ने नृत्य किया था तो उनका मोक्ष हो गया था, तो यहाँ पे भी नाचो। अरे भाई, उनको सहजता से नृत्य प्रकट हुआ था, एक हम्म अहोभाव की वजह से नृत्य हुआ था। यहाँ पे तो अहोभाव के बगैर सिर्फ नृत्य करवाने की बात हो रही है, तो वो अलग है, उसमें रावण और मंदोदरी किधर बीच में नहीं आते भाई। लेकिन ये भ्रम धीरे धीरे खड़ा होता जाएगा, फिर मैं भी ऐसा मानने लगूंगा कि ऐसे हर टाइम मैं नाचूंगा ना तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। फिर रावण और मंदोदरी निकल जाएंगे और सिर्फ नृत्य बचेगा, और फिर नृत्य की बजाय एक भ्रम होगा, और वो भ्रम में ही मैं मेरा मोक्ष मान लूंगा, और एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ टिल एंड में ऐसा ही सोचूंगा कि मैंने भगवान के सामने इतना नाचा हूं कि मुझे इतना पुण्य मिला है। अरे किधर से मिलेगा पुण्य? ये कैसे भक्ति हुई? क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, मैं वापिस वापिस बोल रहा हूँ, ये हमारे अंतर संशोधन की बात है कि हमारी क्रिया की जो पद्धति है खुद की, उसमें सोच ही नहीं है कोई भी, सिर्फ एक भ्रम या इंद्रिय का सुख, वो ही हमारा टारगेट है। इंद्रिय का सुख जहां पे मिल रहा है वहां पे कभी भी आत्मा का सुख नहीं होगा। अगर होता तो इतने लोगों ने, इतने आचार्य भगवंतों ने उसका निषेध नहीं किया होता। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप अच्छा सुनोगे और आप मजा लोगे तो तुम्हारा मोक्ष, तो तुम, उनको कुछ जलन होती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये फील करके ऐसे भाव उन्होंने भी किए थे, और वो रियलाइजेशन उनको भी मिला था कि इसमें कोई, इसका एंड ही नहीं है, ये एंडलेस है। तो एंड अगर लाना है तो ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने हमें ये प्रक्रिया बताई कि भाई रुको, ये प्रक्रिया नहीं, इससे ऊपर उठ के ये प्रक्रिया में जाओ। तो उनके शब्द को आधार बना के हमें एक्चुअल प्रोसेस में जाना चाहिए, और वही मार्ग है, और वो ही मुक्ति दिला पाएगा। तो हर एक व्यक्ति का एक कस्टमाइज मार्ग है। एक वाक्य आज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपना है कि मान्यता श्रद्धा दर्शन के बिना जीव किसी काल में हो नहीं सकता। ये एग्जैक्ट जो हमारी बात चल रही है वो ये है कि हर एक जीव के अंदर कुछ ना कुछ तो है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास कोई बिलीफ नहीं है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिससे किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। आप देखो, जगत का नास्तिक में नास्तिक आदमी भी सबसे बड़ा श्रद्धावान है कि उसे अपनी नास्तिकता के ऊपर भी विश्वास है कि नास्तिकता ही बराबर है। तो वो भी श्रद्धा है, वो ही आस्तिकता है। श्रद्धा रखना वही, विश्वास रखना वही तो आस्तिकता है। तो नास्तिक भी सबसे बड़ा आस्तिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नास्तिकता के ऊपर भी श्रद्धा तो है ही, कि नहीं नास्तिकता ही सही है, तो वो भी एक श्रद्धा है। यानी श्रद्धा के बगैर का तो इस जगत में कोई आदमी ही नहीं है। तो मान्यता, श्रद्धा, दर्शन, ये सब हमें एक डायरेक्शन दे रहा है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, और अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए उसका राजमार्ग क्या है? तो हमें जन्मांतरीय योग ढूंढना, वो हमारा राजमार्ग। उसके लिए सबसे पहली बिलीफ है कि मेरे अंदर भी है, अच्छा खासा श्रद्धा का स्तर है, अच्छा खासा दर्शन का स्तर है, मेरी मान्यता की भी थोड़ी बहुत तो स्पष्टता है। वो सुकृत अनुमोदन का जो भाव यहाँ पे, पॉजिटिविटी का जो भाव है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो भाव है, वो यहाँ पे मुझे हेल्पफुल कर बन रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कि हर चीज गलत है अच्छी चीज भी है। तो ये अच्छी चीज को यूज करके हम लोग अच्छे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत चीज भी है, लेकिन कोई बाधा नहीं, गलत भी निकलती जाएगी। मैं अच्छे को बड़ा करूंगा तो गलत अपने आप दबती जाएगी और वो निकलती जाएगी। ये भी एक मार्ग है। तो जन्मांतरीय योग ढूंढना वो हमारी आवश्यकता है, एक डेडली आवश्यकता है, जो हमें पूरे जीवन काल में करनी ही पड़ेगी। जितने जल्दी कर सकेंगे उतना अच्छा है, कि बाकी के टाइम पे हम वो जन्मांतरीय योग को सिर्फ ढूंढ के तो फायदा नहीं है, ढूंढने के बाद उसका सेवन भी बारंबार आसेवन करना है, कि जिसकी वजह से अगले भाव में भी वो इजीली मिल जाए। ये भाव में 30 साल लगे तो अगले भाव में 10 साल में मिल जाए, याद आ जाए अपने को।
तो उतना सेवन करने के लिए भी वापिस समय चाहिए। तो जितना जल्दी हम लोग कर सके उतना करना चाहिए। और वो करने के लिए जो बिलीफ है वो ये है कि एक भी जीव वो मान्यता के बगैर का नहीं है, एक भी जीव श्रद्धा के बगैर का नहीं है, एक भी जीव दर्शन के बगैर का नहीं है। तो मैं भी उनमें से एक हूं, तो मेरे में भी मान्यता भी है, श्रद्धा भी है, दर्शन भी है। मैं हर एक चीज कर सकूंगा, बस मुझे स्टार्ट करनी है। ये कॉम्प्लेक्स जीव को अंदर से स्टार्ट करना चाहिए। टाइम થઈ ગયો છે? हाँ दीनाबेन का बहुत टाइम से पेशेंटली हैंड रेज्ड है, तो दीनाबेन ना बोलो, अनम्यूट તમારો करिए। क्वेश्चन। જય જિનેન્દ્ર. મારો સવાલ એ છે કે લાસ્ટ સ્વાધ્યાયમાં આપણે મૃગાદેવીની વાતો કરેલી, અને મૃગાદેવીનું જે સાતત્ય છે એ વિશે મારે જાણવું હતું કે જે સાતત્ય એમને કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ ગયા. એટલે એ મને સાતત્ય વિશે તમે જરા થોડું એક્સપાન્ડ કરીને સમજાવી શકાય તો આઈ વિલ એપ્રિશિએટ ઇટ. એટલે આપણે એ દિવસે જે વાત હતી એ રીતે હતી કે મૃગાવતીજી જ્યારે દેશના સાંભળતા હતા ભગવાનની, એ સમયે ભગવાનની દેશનાની જે વેધકતા હતી એ વેધકતાએ એમના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો આમ ભૂક્કો કરાવ્યો હશે, કે જેના કારણે અંદરમાં એમનું ચિંતન મનન ને દોહન એ એકદમ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું હશે. કારણ કે દેશનાની અસર છે, જીવંત પરમાત્મા મળ્યા હોય, એમની વાણી સાંભળવા મળે એટલે અંદરમાં એક બહુ રોમાંચ ઉભો થાય, અંદરમાં એક આખો વિસ્ફોટ ઉભો થાય. જીવંત પરમાત્માના એક અનુગ્રહની પણ એક એનું બળ છે. તો એ બળને એમણે સમવસરણમાંથી નીકળ્યા પછી પણ એમણે સાતત્યપૂર્વક પકડી રાખ્યું. પછી રસ્તામાં આવ્યા, ચંદન બાલાજીને ત્યાં ગયા ઉપાશ્રયમાં, એમને ઠપકો આપ્યો, આમણે એને ઝીલ્યો. પણ એ બધું કરવા સમયે ઓલું બળ જે હતું એ બળ જ સાતત્યપૂર્વક ચાલતું હશે. એના કારણે કેવળ જ્ઞાન એ સાવ નજીકમાં આવતું ગયું. એ સાતત્યમાં જો ભંગ થયો હોત તો આપણે એવું વિચારીએ કે અચાનકથી એ પૂરું થઈ ગયું અને નવો પશ્ચાતાપનો ભાવ આવ્યો અને એમાં એકદમ આગળ વધી ગયા અને થઈ ગયું. પણ આનું બેકિંગ વગર આ શક્ય નથી. એટલે બેકિંગ ભગવાન હું કઈ રીતે આ સાતત્ય કેળવી શકું? લાઈક તો જીવનના નાના પ્રસંગોમાંથી આપણે સાતત્યની હેબિટ પાડવી શરૂ કરવી જોઈએ. જેમ કે આપણને કોઈ એક સારો વિચાર આવ્યો કે આ એક વસ્તુ બહુ જ સરસ થઈ મારા જીવનમાં કે બીજાના જીવનમાં, જે પણ આપણને લાગ્યું હોય. હવે બીજા વિચારમાં જતા પહેલા આપણે ભલે આપણને હેબિટ નથી પણ આપણે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, મનને એવું કેળવવું જોવાનું શરૂ કરવું જોઈએ કે હવે આપણે ધીરેથી હજી એકવાર વિચારીએ કે ના ખરેખર બહુ સરસ. પછી તો કે હવે એના ઊંડાણમાં જઈએ કે આવું એમને કઈ રીતે કર્યું હશે, એની સિચ્યુએશન, એમનું એ અંદરનો ભાવ શું હોઈ શકે, એ વિચારવાનો પ્રયત્ન. શું થયું કે આપણે એક જ પ્રક્રિયાને જે પહેલા ફક્ત અનુમોદના બોલીને છૂટા થઈ જતા હતા એની જગ્યાએ ધીરે ધીરેના ઊંડાણમાં જતા થયા કે આ તપ કેવી રીતે કરી શક્યા હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તપની વાત ચાલે છે તો આપણે એવું વિચારીએ કે તપ કેવી રીતે કરી શક્યા હશે. આમ આટલું ભૂખ્યા રહેવું, મારી સ્થિતિ તો કેવી છે, હું જરાય ભૂખ્યો નથી રહી શકતો, તો આમણે આવું કર્યું હશે. આમ આટલા વખતમાં એમને કોઈ ભૂખ નહીં લાગી હોય, ભૂખ લાગી હશે તો મનને એમણે માર્યું હશે, મનને સમજાવ્યું હશે, કેટલું બધું ઉત્તમ કાર્ય કર્યું. આમ કરતા 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 જે હું પહેલા ફક્ત અનુમોદના બોલીને નીકળી જતો હતો કે છૂટો થઈ જતો હતો, એની જગ્યાએ હું ધીરે ધીરે હવે એ પ્રક્રિયાના ઊંડાણમાં જતો થયો. ભલે મારી સમજણનું જે સ્તર છે એવું જ, જરૂરી નથી કે હું દરેક વસ્તુમાં દર્શન મુનિનો ક્ષયક્ષમ જોવા જાઉં. ના, મેં જે મારી જેટલી અક્કલ ચાલે છે એટલું પણ હું ધીરે ધીરે ઊંડાણ પકડું અને આવું હું ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓમાં કરવાનું શરૂ કરું. શું થશે? મારી બુદ્ધિનો ક્ષયક્ષમ થતો જશે. અને આના કારણે મારું સાતત્યનો જે મારો આયામ છે કે ભાઈ કોઈ એક વ્યક્તિને વસ્તુને ફક્ત આમ બોલીને છૂટા નહીં થવું, જરાક ઉભા રહો, એને ફીલ થવા દો, એની સેન્સિટિવિટી ઊભી થવા દો. એ જે આયામ છે એ ધીરે ધીરે વધતો જશે. પછી ધીરે ધીરે એ જ બીજા આયામને ખેંચીને લાવશે. એટલે આ રીતે સાતત્યનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજે એક ક્રિયામાં મજા આવી, આનંદ આવ્યો, તો આવતીકાલે બીજી ક્રિયા કરતા પહેલા એ ક્રિયાને ચાન્સ પહેલા આપવાનો કે ના હવે હું આજે જરાક આ શાંતિથી કરીશ. આજે ગઈકાલે 5 મિનિટ આપેલી, આજે 10 મિનિટ આપીશ. તો આ સાતત્યનો પ્રયોગ છે. આવું નાનો નાનો પ્રયોગ કરતા રહેવું.
એમાંથી ધીરે ધીરે આગળ વધાશે. એ સાતત્ય એટલે શું? સાતત્ય એટલે સતત એક જ જે વસ્તુ જે કરવાની છે કે કરવી ગમે છે એને સતત કરવી. ઓકે ઓકે બરાબર. દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, એક ચેઇન પ્રોસેસ. ઓકે થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. હવે મારે એક વાત કરવાની હતી ભાઈ. મેં ગયા વખતે આરતીબેનને આ કીધું હતું કે અનાયાસે કેટલીક વસ્તુઓ નીકળેલી કે આપણને આમને આમ આ આદત પડતી જાય છે કે આપણે આવા સત્સંગો સાંભળી રાખીએ. હું સજેસ્ટ કરું છું કે થોડો બ્રેક લેવો જોઈએ. મને કંટાળો છે એમ વાત નથી, હું પેલું જ સ્પષ્ટતા કરું છું કે બ્રેક એટલા માટે લેવો જોઈએ કે આ પણ એક આદત થઈ જાય છે કે બસ દર વખતે નવું સાંભળ. અને આ વેરાયટીની આદતને કાઢવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક ઘૂંટવાની આદત પાડવી પડશે. અને ઘૂંટવાની આદત પાડવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકવું પડશે. અટકશું નહીં તો ઘૂંટાશે જ નહીં. તો આવું કંઈક રાકેશભાઈ, નેહાબેન પ્રપોઝ કરું છું કે આ બાબતમાં એક કંઈક વિચારીને જોડાવો શું થઈ શકે. જો એવું થઈ શકે કે આપણે ઘૂંટવાની પ્રેક્ટિસ પાડીએ, પછી એમાંથી જે પ્રશ્નો જાગે એ પ્રશ્નો માટે ફરી એકવાર મળીએ. પણ પ્રયત્ન તો થાય. નહીં તો આમ સાંભળ્યું, કાનને ગમ્યું, વખાણ કરી લીધા કે શાલીભદ્રભાઈ બહુ જ સરસ બોલે છે ભાઈ, શાલીભદ્રભાઈને ગલગલિયા થઈ ગયા અને આખો પ્રોસેસ પૂરો થઈ ગયો, વર્થ ન મળ્યું એમ. એટલે આ મારું માનવું છે. હું માનું છું કે બધાને વર્થ મળતું હશે, પણ ઘૂંટવાની જે પ્રેક્ટિસ છે એ પડવી જોઈએ. બરાબર છે. ઇટ્સ અ વેરી વેલિડ પોઈન્ટ. તો એ બદલ એ માટે કંઈક સજેશન છે? લાઈક વન થિંગ અમે વિચારતા હતા કે બધાને કહી શકીએ કે આ પાછળના આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ કે 3 સેશન કે 5 સેશન, અને એના આધારે ક્વિઝ કે એવું કંઈક રાખી શકીએ. એ એક વિચાર હતું. પણ બીજું જે હું જો એવું માનું છું સાહેબ કે અહીંયા બધા બહુ સુગ્ન વ્યક્તિઓ છે, નહીં તો આવી વાત સાંભળવા કોણ આવે. એટલે દરેક વ્યક્તિને મોટિવેશનની જરૂર ઇન્ટરનલી બહુ, એટલે બહારથી બહુ નથી, ઇન્ટરનલી જ જરૂર છે. ક્વિઝ રાખીએ તો સારી વસ્તુ છે, પણ પેલા એક અંદરનો ક્રમ ઉભો થાય દરેકને. દરેક પોતે જ પોતાનો એક સ્વાધ્યાય લખે કે આ સ્વાધ્યાય સાંભળ્યા પછીથી મને શું સ્પંદનો જન્મ્યા, એને પોતે જ પોતે વિચાર કરે. અનુકૂળતા હોય તો પોતે જ લખે. આપણે કોઈને લખેલું દેખાડવું નથી, પણ પોતાને સમજાય કે આના આધાર ઉપર મારે જીવનમાં કંઈક કરવું પડશે. ફક્ત સાંભળીને છૂટા નહીં થઈ શકાય. પછી ક્વિઝ રાખો, પણ મૂળ એ પણ પાછું નવું વેરાયટી ન થઈ જાય ક્વિઝ. Right, right. So yeah, what Shalibhadraji is saying is we should contemplate on what we have been listening to, because otherwise this will also become another routine to listen to new things. And Shalibhadra Bhai has a very nice way of explaining. So, you know, our ears, our mind enjoys it, and that's not the purpose. So to go a little bit deeper, dig a little bit deeper, what he's suggesting is we should take any, Shalibhadra Bhai, please correct me if I'm wrong, to take any swadhyay that we have done, any satsang that we have done so far with him, and take that and note down like what it is that I learned from it and how is it that this can improve me. And that's a personal note. You don't have to share it with anyone right now, at least. But is બરાબર છે શાલીભદ્રભાઈ? Did I get it? દરેક વ્યક્તિનો પોતાનો સત્સંગ હશે. આપણને જે સત્સંગની જે વાત અપીલ કરી છે આપણે એ પકડવાની. દરેકને અલગ અલગ વસ્તુ અપીલ કરતી હશે, એવું બની શકે. તો દરેકે પોતાનો કસ્ટમાઇઝ એક અપીલનો પ્રોગ્રામ ઉભો કરવાનો કે ભાઈ આ વસ્તુ ખરેખર મારા જીવનમાં બહુ જરૂરી છે અને આઈ એમ એબલ ટુ ડુ ઇટ, તો લેટ મી ટ્રાય, લેટ મી સ્ટાર્ટ ઇટ. ઓકે, એ પદ્ધતિ કરીએ. ઓકે. એટલે એમાં પણ એવું નહીં કે આમ બધા સત્સંગોને રોજ સાંભળીએ, એવું પણ નહીં. હું એમ કહું છું કે એમાં પણ આપણે કોઈક એક વસ્તુને પકડીને એમાં પણ ઘૂંટવાનું રાખીએ. આ વસ્તુ તો આ વસ્તુ. Go deeper, like pick one, any one that we liked, and then go deeper, dig deeper, like and apply it to ourselves, not just listen. બરાબર?
બરાબર છે. So next session next week we will not have this group satsang. We will have the satsang with ourselves. So that will give people time, hopefully, to contemplate and do this note taking, and take time to understand something a little bit, and make it personal, make it personalize that I will learning. I will also suggest कि नेक्स्ट सैटरडे को अगर हम लोग हर वीक में ये टाइम निकाल सकते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और सुनने के लिए अगर हम लोग 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो हम खुद बोले और खुद सुने, उसके लिए भी ये टाइम को हमें निकालना चाहिए. ये भूख और ये मैच्योरिटी लेवल हमारा आना चाहिए कि हर टाइम आलम्बन की वजह से ही मैं आगे चलूं, ऐसा नहीं. एक तो कभी कभी तो ऐसा हो कि जिसमें मैं कमिटेडली ये टाइम को पकड़ के ही रखूं, यही टाइम होगा और कोई नहीं बोलेगा, कोई सत्संग जूम नहीं होगा, मैं खुद के ऊपर जूम करूंगा और मैं फोकस करूंगा. राइट. बराबर, ये वो अच्छा सजेशन है. नहीं तो फिर वो ऐसे सेट टाइम हाँ, नहीं कब होगा होगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट हो सकता है. Correct. तो एवरीबॉडी नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 10 o'clock अपना ईस्टर्न 10:15 to 11:15 we can change it को પહેલા हम બધાને खुद के પૂછો, साथ करेंगे सत्संग. બધાને અનુકૂળ લાગે છે. મારાથી બધા વડીલો છો, હું સજેસ્ટ કરું છું, હું એવો આગ્રહ નથી રાખતો કે આપણે આવું કરવું જ, પણ મને એવું ના, લાગે આગ્રહ છે કે રાખો, આગ્રહ રાખો. ના, આગ્રહ ન રખાય. આગ્રહ નાનાઓને આગ્રહ અમારા રાખવાનો માટે, અધિકાર નથી. તમારા માટે નહીં, અમારા માટે આગ્રહ રાખો. No, seriously, I mean, we need that बराबर push. છે. All We of can us try need it. that. एक बार ट्राई करिए तो ख्याल આવશે. I think it's a very good idea. અને ये तो बात बराबर જ છે. I mean this is ये तो सही है कि हमारी भी एक ये आदत हो जाती है कि अभी 10:30 बजे यहाँ जूम में ज्वाइन किया और फिर सब सुना और फिर बाद में वापस उसका सोच से भी नहीं है. इसके लिए हम लोग वो रिकैप का भी ये कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट फोर्स करें, बट वो भी एक थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है फिर. तो ये डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करने जैसा है. तो देख वी कैन डू इट एक वीक एंड बाद में जिसको भी फीडबैक देना है they can give and we can go from there. તમે લોકો ફીડબેક લેજો રાકેશભાઈ, હા. જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ઘણીવાર એવું બને કે બહુ નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયાસ કોઈકે કર્યો હશે અને એને એવું લાગતું હશે કે નહીં, આમાં હજી મને ક્લેરિટી જોઈએ છે, તો એવા સમયે સત્સંગ હોવો જ જોઈએ. Okay. પણ મૂળ ભૂખ લાગ્યા પછી ભોજન આપવું છે. બરાબર છે. આમ Right. સ્વામી વાત્સલ્ય નથી ગોઠવવું. या तो मेनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद में पीपल विल हैव समथिंग टू शेयर और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि अभी ये मैंने समझा बट ये मुझे क्लियर नहीं है, तो हाउ कैन आई गेट मोर क्लैरिटी. तो उसके बाद वाला सेशन में वी कैन टेक दैट. तो ठीक है. और कुछ एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स? Otherwise, we can stop here. I have one question, Rakesh bhai and Shalibhadra bhai. Go ahead. કે આજે આપણે પ્રોસેસ કરીએ, પણ બેઝિકલી યુ કેન ઓનલી ડુ one session. You know, so far we probably have done 12, 13 sessions. So you pick and choose which one you want to work on it. Or it should No, go each and systematically from. पर्सनली ऐसा बोल रहे हैं आई थिंक, राइट सालिया भाई? जो आपको पर्सनली रुचता है वो हम लोग वी कैन. हाँ, each and everyone has a different taste. तो किसी को ये लगा होगा कि ये आत्मा वाली बात तो थोड़ी अपर लेवल की है, लेकिन ये वाली चीज जो है वो एक्चुअली नीडेड है. तो हर एक व्यक्ति की एक कक्षा है जो वो व्यक्ति खुद डिसाइड कर सके. इनफैक्ट मैं तो ये अप्रिशिएट करूंगा कि इस बहाने हमें हमारी कक्षा का भी पता चलेगा कि ये सब में से ये बात अपील कर रही है, ठीक है, तो मैं ये पकड़ के आगे चलूंगी. ठीक है. तो वो अगर कस्टम वे से करेंगे तो बेटर होगा मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से. ठीक है. और Very हम good. लोग जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भेज देंगे. तो सभी रिकॉर्डिंग्स उसमें है, तो उसके अगर वो थोड़ा थोड़ा देख के या ऐसे चूज करके, या तो अगर आपने कोई भी नोट्स लिया हो वो वापस से रिवाइज करके, या व्हाटएवर मेथड. और अगर कुछ और हेल्प चाहिए एज फार एज कंटेंट गोज
तो you can always reach out to us. तो हम we can try to provide any help on that. लेकिन सिर्फ 1 घंटे तक सुनिएगा मत कोई भी, वो खास ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सुनना नहीं है। वो 1 घंटे में भी आपको अगर सुन भी रहे हो तो बंद करके बाद में सोचना है और खुद को बोलना है, वो खास करना। नहीं तो ऐसा ना हो कि वापिस एक स्वाध्याय करके सुन के रिपीट करके छोड़ दिया, वैसा नहीं, खुद को बोलने देना है, वो मेन है। ठीक है, परफेक्ट। One announcement before we do Antmangal. We have a new course offering from Atmaruchi Foundation. This is for youths. The course name is ARB, Architecture of Reality and Bliss. And we have sent a detailed message on it. This will be in English because the target audience is youths. 16 to 39 is the age group. Of course, a few years here and there is fine. But it's basically going to be focused on Tattvar Sutra, learnings from that, but definitely more, modernized in terms of the way it's going to be presented. So please spread the message with any of the youths you feel are interested. We are going to cover several different things that appeal more to the younger audience, like, eco-friendliness and how to boost their personal growth and confidence, all of those kind of things, but, with the framework that Prabhu and Guru has given us. So with that, we can end the session, I guess. Antmangal, Harsha Ben, आपका शो। जी। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं एसो पञ्चनमुखारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम सर्वेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनुमोदना। જય ખૂબ ખૂબ જિનેન્દ્ર, thank you. બધા સાતામાં રહેશો જી। બધા સારું રહેજો. સાતામાં રહેજો। આભાર શાલીભદ્રભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ।